Everyone, how are you? How was your celebration of Rakhi yesterday? You enjoyed or not? Yes, please communicate, yeah. Yeah, enjoy. Okay, so now let's begin with today's new lesson or part one of direct and indirect speech. Okay, so this is our first part of direct and indirect speech. In this topic, first we will be studying what do you mean by direct speech and what do you mean by indirect speech, and then we will be coming to the general rules of how to transform from direct speech to indirect speech. Okay. So yes, first we will be studying direct speech. Now pay attention, what do you mean by direct speech? In direct speech, the actual words of a speaker are repeated. These words are placed between inverted commas at the beginning and at the end. तो अभी हमें डायरेक्ट स्पीच में क्या देखना है कि जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के वो प्लेस किए जाते हैं इन अ सेंटेंस. ओके, सी इट इज रिटन लाइक दिस ओनली. द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ a speaker are repeated. These words are placed between inverted commas. अभी inverted commas जैसे कि आप लोगों को पता है, these are the inverted commas. एक single inverted comma होता है और एक double inverted comma. So if the exact words of a speaker are placed between these inverted commas, then it is known as a direct speech. जो भी exact words बोल रहा है speaker कि मैंने आज ऐसा किया या तो फिर मैंने आज वैसा किया, तो जो भी exact words रहेंगे speaker के, that will come under direct speech. And this will be the inverted comma at the beginning and at the end of a sentence. With the help of example, it will be clear for you as like this. Mohan said, I have lost my umbrella. Mohan said, किसने बोला? मोहन ने बोला. So the exact words of a speaker. Here speaker means the person who speaks. जो पर्सन स्पीक करता है उसे क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है. तो यहाँ पे स्पीक कौन कर रहा है? मोहन. सो मोहन इज द स्पीकर हियर. सो मोहन सेड, मोहन ने क्या बोला? आई हैव लॉस्ट माय अम्ब्रेला. मेरी अम्ब्रेला क्या हो गई है? लॉस्ट हो गई है. ओके, आई कैंट फाइंड इट एनीवेयर. ओके, सो मोहन सेड आई हैव लॉस्ट माय अम्ब्रेला. इन दिस सेंटेंस said is the reporting verb. Now what do you mean by reporting verb? देखो, reporting verb का मीनिंग होता है the word which comes before inverted comma. अगर डायरेक्ट स्पीच में बिफोर इन्वर्टेड कॉमा अगर कोई वर्ड आता है तो उसे कहा जाता है कि दैट इट इज अ रिपोर्टिंग वर्ब. सो इन दिस सेंटेंस मोहन सेड आई हैव लॉस्ट माय अम्ब्रेला. वेयर आर द इन्वर्टेड कॉमास? बिफोर आई एंड आफ्टर अम्ब्रेला. दिस आर द इन्वर्टेड कॉमास. तो बिफोर आई अगर आप देखते हो इन्वर्टेड कॉमा है, तो इन्वर्टेड कॉमा के पहले कौन सा वर्ड यूज किया गया है? सेड. सो सेड इज द रिपोर्टिंग वर्ब. सो यू शुड नो द वोकैबुलरी आल्सो कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी क्या होता है ना. कभी हमें अगर हम कोई ग्रामर की बुक रेफर कर रहे हो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब ये वर्ड अगर आ जाता है, सो यू शुडंट बी कंफ्यूज्ड कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहा जाता है. सो रिपोर्टिंग वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले आता है. तो यहाँ पे सेड इज द रिपोर्टिंग वर्ब. Okay, so Mohan said, I have lost my umbrella. This is the sentence in which Mohan is the speaker and the exact words of a Mohan are quoted in a sentence. That's why this sentence belongs to direct speech. समझ में आया कि डायरेक्ट स्पीच में ये कैसे आया सेंटेंस. देन कम्स इनडायरेक्ट स्पीच. अभी फिर इनडायरेक्ट स्पीच यानी क्या होता है? We give the substance or meaning of a person's speech without necessarily using the speaker's exact word. See, the major difference between direct speech and indirect speech is that here we are using the exact words of a speaker. जो स्पीकर कम्युनिकेट कर रहा है उसके अगर आप एग्जैक्ट वर्ड्स लिखते हो तो वो डायरेक्ट स्पीच में आता है. लेकिन अगर आप एग्जैक्ट वर्ड्स उसके नहीं रेफर कर रहे हो सेंटेंस में और उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन आपसे कम्युनिकेट करता है तो उसे हम कहेंगे कि दैट इज इंडायरेक्ट स्पीच. It is written without necessarily using the speaker's exact words. Means you don't have to use the exact words of a speaker in indirect speech. For example, we will take an example of a movie. हम लोग जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो कैरेक्टर्स रोल प्ले करते हैं वो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं जो वो एक के साथ कम्युनिकेट करते हैं, है ना. जो उनका कैरेक्टर होता है दे परफॉर्म देयर रोल एंड दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. उनकी एक स्टोरी होती है, उनका एक प्लॉट बना हुआ रहता है, तो वो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं. तो वो आएंगे डायरेक्ट स्पीच में.
लेकिन अगर आप वही स्टोरी घर पे आके अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो कि वो मूवी में ऐसा हुआ था, वो स्पीकर ने वैसा किया था, वो एक्टर ने ऐसा रोल परफॉर्म किया था, तो ये आपके साइड से इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, क्योंकि आप उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करके बता रहे हो, आप उस स्टोरी को मोल्ड करके बता रहे हो कि वहां पे ऐसा हुआ था, लेकिन वो टाइम पे तो एक्शन प्रेजेंट में थी, लेकिन आप उसको कैसे बोल रहे हो कि वो टाइम पे वो एक्शन वैसे हुई थी। ओके, सो द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर मींस मूवी में जो कैरेक्टर्स रोल प्ले करते हैं, लेकिन मूवी देखने के बाद जब आप घर पे आते हो और एक में के साथ डिस्कशन करते हो कि ये ऐसी मूवी थी, ये ऐसी स्टोरी थी, ये ऐसा प्लॉट था, सो दैट विल कम अंडर इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन? सो इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर, but on the other hand in indirect speech we don't use the exact words of a speaker, it is said on behalf of another person, कोई दूसरा पर्सन कम्युनिकेट करके उसके वर्ड्स एक्सप्रेस करता है तो वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। अंडरस्टूड? अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नहीं समझेगा तो रूल्स भी नहीं समझेंगे। सो इसमें अगर कोई डाउट है तो यू कैन क्लियर दैट डाउट्स, देन यू विल टेक दिस एग्जांपल। एनी डाउट इन दिस? ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद द एग्जांपल। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिखा वो डायरेक्ट स्पीच में था, मोहन सेड आई हैव लॉस्ट माय अम्ब्रेला। सो नाउ एज लाइक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम लोग यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? अगर डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास हम यूज करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में भी कॉमा प्लेस करके आते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में भी कॉमास प्लेस करके आते हैं, बिकॉज दे डोंट नो द डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे भी हमने डेफिनेशन देखी है तो हमको डिफरेंस तो समझ में आ रहा है ना कि जिसके एग्जैक्ट वर्ड्स रहेंगे वहां पे आपको कॉमा देने की जरूरत है, बट इफ देयर आर नो एग्जैक्ट वर्ड्स देयर इज नो नीड टू प्लेस अ कॉमा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग विदाउट प्लेसिंग एनी कॉमास वी विल ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आ रहा है? सो अभी देखो, मोहन सेड, इट विल बी द सेम बट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। अभी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या था, सेड था। रिपोर्टिंग वर्ब यानी क्या होता है कि ऐसा वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले आता हो, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के पहले क्या आ रहा था, सेड आ रहा था, तो आफ्टर सेड यू हैव टू यूज दैट इन इनडायरेक्ट स्पीच। सेड के बाद आपको क्या यूज करना है, दैट यूज करना है। मोहन सेड दैट, मोहन बोल रहा है, ठीक है, मोहन सेड दैट he had lost his umbrella. Now I will change into he, have will change into had। ये जनरल रूल्स है, ये आप आगे देखोगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए बात को इतना ही समझो कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में है, ये जो सेकंड सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच है। जनरल रूल्स धीरे धीरे आपको आते जाएंगे। ओके, सो हैव इज चेंज्ड इनटू हैड, आई इज चेंज्ड इनटू ही, एंड देन लॉस्ट का हमने लॉस्ट ही रखा, माई इज चेंज्ड इनटू हिज। तो ऐसे चेंजेस आप धीरे धीरे स्टडी करोगे कि माई का हिज में कैसे चेंज होता है, आई का ही और शी में कैसे चेंज होता है। सो यू विल स्टडी दिस इन आवर नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये बस एक्सप्लेनेटरी पार्ट था जहां हमने देखा कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल से हमें ये समझा कि एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर अगर कोट करने हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में डाला जाता है, और एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर अगर हमें कोट नहीं करने हैं तो वहां पे इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं होता है। समझ में आया इतना? सो अभी हम आगे देखेंगे जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो अ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट टेंस। तो देखो, सबसे पहले अभी हमने क्या स्टडी किया था, टेंसेस की हमने स्टडी की थी। टेंसेस जो हमने स्टडी किए उससे रिलेटेड फिर वॉइसेस स्टडी किए। अभी वो टेंसेस अभी हमें यहाँ पे भी काम में आ रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही नहीं समझेगा तो आप ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि टेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर स्टडीइंग ग्रामर। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेलिवेंट है वॉइसेस के लिए भी टेंसेस, और टेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। ओके, सो नाउ पे प्रॉपर अटेंशन, द रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो कुछ भी नहीं है, ये एक छोटा सा पार्ट है, यू कैन से दैट दिस इज द ट्रेलर, लेकिन बहुत ज्यादा रूल्स है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। यू विल बी स्टडीइंग वन बाय वन। सो कमिंग टू द फर्स्ट रूल, अ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट टेंस। अभी अगर आपको रूल रिकनेक्ट हो रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल था, कैन एनीवन टेल मी?
अगर कुछ रिवाइज किया हो, थोड़ी फुर्सत मिल गई हो घर पे बाय चांस, तो थोड़ा सा याद आ जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या लिखते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में? यस, आर यू नॉट रिवाइजिंग रूल्स एट होम? फिर हमारा मतलब ही देखो क्या है लेने का, हमने टेंसेस लिए, वॉइसेस लिए। यस, करेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो V1 है वो कब चेंज होता है? अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है और वहां पे ही, शी और इट है तो वर्ब विल टेक एस फॉर्म। ठीक है, अगर ही, शी और इट है देन ओनली द वर्ब विल बी टेकिंग एस फॉर्म। अदरवाइज हमारा रूल आपने जो बोला वो एकदम करेक्ट है कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस इज चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट टेंस। अभी सिंपल पास्ट टेंस का क्या रूल है? यस, वेरी इजी, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस में V2 यूज होता है, बस ये ध्यान में रखना है। ओके, सो नाउ सी दिस सेंटेंस, इट इज रिटन इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है रेड पेन से वो डायरेक्ट स्पीच में है, और वहां का जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है। हम ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं कि कैसे चेंजेस होते हैं। सो नाउ पे अटेंशन टू दिस सेंटेंस, माय फ्रेंड सेड। अभी सेड क्या है? यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक कॉमा, देन ओपन द इन्वर्टेड कॉमा, देन क्लोज द इन्वर्टेड कॉमा, इन बिटवीन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर नोटेड डाउन। ठीक है, माय फ्रेंड सेड माय फादर गोज टू वर्क एट 9 o'clock। मेरे फ्रेंड ने बोला कि उनके फादर वर्क के लिए जाते हैं 9 o'clock। सो इन दिस सेंटेंस आपको इतना पार्ट अभी नहीं देखना है, आपको ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स है ना स्पीकर के वो अच्छे से देखने हैं। इसमें बताना है आपको कि मेन वर्ब कौन सा है, विच इज द मेन वर्ब देयर इन दिस सेंटेंस। माय फादर गोज टू वर्क एट 9 o'clock, मेन वर्ब कौन सा है? goes. Okay, goes, it is the main verb. So this main verb is in simple present tense. ये जो main verb है वो simple present tense में है, तो goes का आप simple past tense में क्या करोगे? So go, went, gone. ठीक है, go it is the V1 form, then went it is the V2 form, and gone it is the V3 form. तो हमने तो simple past tense में क्या देखा था कि V2 form use होता है, so we will be using this V2 form as goes का हो जाएगा went. So now see how I have written in indirect speech. My friend said that. That देखो लगता ही है indirect speech में कि मेरे friend ने ऐसा बोला. My friend said that. Now my father, my की जगह पे आप his और हर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ऐसे जेंडर नहीं दिया है, तो इसलिए हम फ्री है कि हम his भी लिख सकते हैं या हर भी लिख सकते हैं. My friend said that her father, now goes will change into went. Okay, to work वैसे के वैसे ही रहेगा, at 9 o'clock it will be the same. So my friend said that. So after reporting verb you have to use that, then my will change into his or her depending on the sentence, and then father तो वैसे के वैसे ही रहेगा. Goes it is the main verb and it is written in simple present tense, so it will change into simple past tense. तो goes का आपको एकदम से V2 फॉर्म याद आना चाहिए कि go का V2 फॉर्म होता है went, and the rest part of the sentence will be the same. So my friend said that her father goes या फिर went to work at 9 o'clock. समझा फर्स्ट सेंटेंस किस तरीके से हमने चेंज किया? तो ये हमारा था फर्स्ट रूल. एनी डाउट? यस, मी रहा तो मे, MAY. अच्छा, कोई नाम रहा तो जैसे कि अभी देखो ऐसे बोलो, माय फ्रेंड सेड रोहन गोस टू वर्क एट 9 o'clock, लाइक दिस. हाँ, तो इधर कैसे लिखोगे फिर? माय फ्रेंड सेड दैट रोहन वेंट टू वर्क एट 9 o'clock. वैसे के वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. लेकिन अगर प्रोनाउंस है तो वो टाइम पे आपको चेंजेस करने पड़ते हैं. जैसे कि देखो हमने नाउन्स में वॉइसेस में भी देखा था कि अगर राम है तो इट विल बी राम ओनली इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस. लेकिन मेन प्रॉब्लम कहां जाती है? प्रोनाउंस की. प्रोनाउंस में ज्यादा हेडेक होता है क्योंकि प्रोनाउंस का ज्यादा से ज्यादा चेंजेस होते हैं. ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि प्रोनाउन मोस्टली चेंजेस होते हैं वहां पे, बट जो नाउन्स होते हैं वो हम वैसे के वैसे लिख सकते हैं. ओके, next sentence now. The present continuous tense is changed into past continuous tense.
जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को पास्ट में किया, वैसे ही अभी प्रेजेंट के बाद सिर्फ क्या करेंगे, पास्ट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे भी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होता है और यहाँ पे भी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होता है, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं। वहाँ पे इज एंड आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, was, were plus verb plus ing depending on the subject. Okay, so now pay attention to the example. The peon said, अभी प्यून ने बोला, प्यून के एग्जैक्ट वर्ड्स आएंगे। ओके, फर्स्ट इसमें द प्यून सेड माय मास्टर इज राइटिंग लेटर्स नाउ, मेरे जो मास्टर है वो अभी क्या कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं। ओके, अभी बोला उन्होंने कि अभी वो एक्शन हो रही है बिकॉज इट इज इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अभी इसे अभी क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। सो हाउ विल यू डू इट और हाउ विल यू बिगिन द सेंटेंस, द प्यून सेड दैट, सेड इज द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। सो द प्यून सेड दैट, अगेन जैसे हमने यहाँ पे माय को चेंज किया था उसी तरीके से माय इज चेंज्ड इनटू हिज और हर। ओके, द प्यून सेड दैट हिज मास्टर, then is is changed into was, क्योंकि हम किसमें लिख रहे हैं, past continuous tense में लिख रहे हैं। So the peon said that his master was writing letters then, now is changed into then। ये एक टेबल हम लोग बनाएंगे, जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत रूल्स नहीं है यहाँ पे लिखे हुए, आगे हम और भी रूल्स देखने वाले हैं, तो उसमें हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इन दैट टेबल नाउ इज चेंज्ड इनटू देन, yesterday is changed into previous day, ऐसे कुछ चेंजेस है जो कि आप लिखोगे आगे। So just you have to keep this in mind कि ये वाले सेंटेंस में now change हो रहा है then में। The peon said that his master was writing letters then। समझ में? यहाँ पे ऐसे नहीं करना was being written, कुछ स्टूडेंट्स वॉइसेस को और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को भी मिक्स कर देते हैं। सो हियर यू हैव टू पे अटेंशन कि जो हमारा रूल है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है। सो इज राइटिंग इज चेंज्ड इनटू वाज राइटिंग। अंडरस्टूड दिस सेंटेंस? एनी डाउट? कैन यू मूव अहेड? Okay, next one. The present perfect tense is changed into past perfect tense। अभी जैसे कि हमारी सीक्वेंस से शुरू है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है, अभी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। सो सी द एग्जांपल, द बॉय सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। अब ये बॉय के एग्जैक्ट वर्ड्स है कि उसने क्या किया है, वर्क कंप्लीट किया है। आई बोल रहा है ना, वो मींस खुद के बारे में बोल रहा है, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, open the inverted comma, close the inverted comma, before the inverted commas the verb is there, that is reporting verb जिसे हम कहते हैं। तो reporting verb के बाद क्या आता है, अभी यहाँ पे नीचे that आता है। So the boy said that I will change into he, है ना, अभी boy है तो इसलिए he लिखा, girl बैठा था यहाँ पे तो she लिख देते। The boy said that he have completed, इसका रूल क्या था, have और has plus V3, और पास्ट परफेक्ट का क्या रूल है, हैड प्लस V3। रिकलेक्ट हो रहे हैं रूल्स, अच्छे से आने चाहिए रूल्स, तभी आपको समझेगा कि हैड से यहाँ पे हैड में क्यों हुआ है, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। सो द बॉय सेड दैट he had completed his work, again my is changed into his, ठीक है। So in indirect speech the sentence will be like this without using inverted commas and without quoting the exact words of the speaker। The boy said that he had completed his work। समझ में आया? तो अभी हमने तीन रूल्स देखे। फर्स्ट रूल में देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट टेंस, फिर देखा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर देखा हमने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यहाँ पे बीइंग ये लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया इतना पार्ट? ओके, नोट डाउन करना है, डू इट फास्ट देन।
इसमें से तो आए हो एक सर लेकिन समझ में कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक होती। इससे अच्छा नहीं कि आते थे ना तो दूसरी जगह ठीक रहता। Is it done? Make it fast. You have to study more rules also.
ओके, इज दिस पार्ट डन? इतना पार्ट हो गया है. सॉरी बट आई विल नॉट वेट फॉर यू. ओके, बिकॉज यू आर लेट बाय योर ओन. खुद का लॉस है आप लोगों का. एक बार लॉस होगा तो कल से बराबर आओगे टाइम पे. ओके. See, if I am giving inverted commas, then you have to give also inverted commas. जैसे मैं लिख रही हूँ properly वैसे inverted commas, commas, full stop देते जाओ. Okay? Proper punctuation should be there. Direct speech में देखा जाता है कि आपका punctuation proper है कि नहीं है.
Now this side, is it done? Not finished yet? हो गया है इतना क्वेश्चन? Shall I rub?
ओके, यू कैन कंटिन्यू आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, बाद में भी आप लोग लिख सकते हो। अभी के लिए फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में कर देती हूँ, ध्यान दो। ओके, सो पहले अभी हमने क्या देखा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच में देखा कि एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नोटेड डाउन, बट इन इनडायरेक्ट स्पीच जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के वो नोट डाउन नहीं किए जाते हैं, बट उनके बिहाफ पे कोई अदर पर्सन बात करता है। सो दिस इज एन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, बट इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल सेंटेंस होता है वेयर देयर आर नो कॉमास एंड नो इन्वर्टेड कॉमास। ओके, फिर हमने जनरल रूल्स देखे। जनरल रूल्स में हमने सबसे फर्स्ट ये रूल देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट टेंस। फिर एग्जांपल देखे, उसका एक्सप्लेनेशन किया। देन कम्स द सेकंड सेंटेंस, उसमें देखा था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर थर्ड रूल देखा हमने ये कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। सो दिस वेयर आर थ्री रूल्स। नाउ कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अभी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा वो किस में चेंज होगा? फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे हमारी सीक्वेंस शुरू थी उसी के हिसाब से द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन ये प्रेजेंट तक के रूल्स ऐसे थे कि प्रेजेंट का पास्ट में हो रहा था, लेकिन अभी जब हम सिंपल पास्ट टेंस देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होने वाला है। इन सिंपल पास्ट टेंस इट इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो सिंपल पास्ट टेंस का ऐसे नहीं लिखा है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में चेंज होगा, यहाँ पे रूल्स थोड़े चेंज हो गए हैं। सो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अटेंशन हियर कि सिंपल पास्ट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी सिंपल पास्ट टेंस का क्या रूल था हमारा? V2 वी विल बी यूजिंग, है ना। सिंपल पास्ट टेंस में हम V2 यूज करते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या रूल होता है हमारा? हैड प्लस V3। हैड प्लस V3 इट इज द रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हो रहा है रिकलेक्ट रूल्स। So now see the example. Mary said I went to the exhibition yesterday. अभी मेरी ये खुद के एग्जैक्ट वर्ड्स लिख रही है और बोल रही है कि I went to the exhibition yesterday. मैं कल एग्जीबिशन देखने के लिए गई थी। Okay, so how will you write it in indirect speech? First part will be the same. Mary said. अभी said क्या है यहाँ पे? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का मीनिंग होता है कि ऐसा वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले आए उसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो अभी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इंडायरेक्ट स्पीच में दैट आता है। ओके, सो मेरी सेड दैट आई विल चेंज इनटू ही और शी। ये वाले रूल में देखोगे आप, द प्रोनाउन आई इज चेंज्ड इनटू ही और शी। So here I is changed into she because Mary is a girl. That's why I की जगह पे हमने क्या लिखा? She लिखा। Now which is the main one? अगर आप इतना पार्ट देखते हो जो इन्वर्टेड कॉमास में है उसी को देखना है। ओके, इसको नहीं देखना है, नहीं तो इसको देख के आ जाओगे तो ये हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही मिलेगा। ओके, इसको देखना है जो मिडिल पोर्शन है हमारा। So went it is the simple past tense। अब सिंपल पास्ट टेंस का किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। So the rule is had plus V3। So she had gone, go, went, gone। Okay, so went का क्या हो जाएगा? Gone हो जाएगा। So Mary said that she had gone to the exhibition। Now again yesterday will change into the previous day। ऐसे चेंजेस होते हैं, जैसे कि नाउ का देन किया था ना, डायरेक्ट स्पीच में नाउ था तो इनडायरेक्ट स्पीच में देन किया था, वैसे ही द यस्टरडे इन डायरेक्ट स्पीच इट इज चेंज्ड इनटू द प्रीवियस डे। सो कंबाइन अगर हम सेंटेंस को रीड करते हैं तो ऐसा आएगा, मेरी सेड दैट शी हैड गॉन टू द एग्जीबिशन द प्रीवियस डे। सो हमने क्या क्या चेंजेस किए? सेड के बाद हमने डैट लगाया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इंडायरेक्ट स्पीच में डैट लगता है। फिर वेंट जो सिंपल पास्ट टेंस में था उससे पास्ट परफेक्ट में किया, हैड प्लस V3। सो हैड हमने यूज किया है यहाँ पे, और V3 फॉर्म गो का क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे गॉन लिखेंगे, टू द एग्जीबिशन वैसे के वैसे लिखा, यस्टरडे इज चेंज्ड इनटू द प्रीवियस डे। समझ में आया ये सेंटेंस? अभी नेक्स्ट वन, पास्ट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी अगर आप कोई भी एग्जांपल घर पे सोचते हो तो पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट वन दैट इज पास्ट परफेक्ट डज नॉट चेंज।
लेकिन जो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को ऐसे कंबाइन किया है और नो चेंज लिखा है ताकि आपके ध्यान में रहे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी चेंज नहीं होता है। तो ये कुछ चीजें होती है, ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान में ही रखने पड़ेंगे। ओके, सो पास्ट परफेक्ट भी चेंज नहीं होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यहाँ पे चेंज नहीं होता है। समझ में आया? अभी नेक्स्ट रूल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले आता हो उसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। सो इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, द टेंस ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स द सेम। हाउ? नाउ सी इट इन अ एग्जांपल। ही सेज आई हैव डन द एग्जाम वेल। ही सेज, अब यहाँ पे सेड नहीं लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? सेज लिखा है। तो ये अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले दिया गया है, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये जो टेंस है ना, ये सेंटेंस का, वो चेंज नहीं होगा। रूल समझ में आ रहा है क्या? क्या बोल रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये जो मिडल पोर्शन होता है हमारा इन्वर्टेड कॉमास का, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, ऊपर के सभी सेंटेंसेस में सेड सेड देखा था, लेकिन ये कुछ न्यू है, यहाँ पे हम सेज देख रहे हैं जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो अब इसको कैसे चेंज करोगे इंडायरेक्ट स्पीच में? ही सेज दैट, देखो दैट तो आना ही है। अगेन आई इज चेंज्ड इनटू ही और शी, डिपेंडिंग ऑन हियर। यहाँ पे ही है तो हमने यहाँ पे ही लिखा, ही सेज दैट ही। नाउ हैव, यहाँ पे हैव और हैज ये सेम ही है ना, इट इज इन प्रेजेंट ओनली, लेकिन डिपेंडिंग ऑन ही के साथ हम हैव तो नहीं लिख सकते, इसलिए हमने ही की जगह पे फिर बाद में हैज लिखा। He says that he has done the exam well. So this rule says that if your reporting verb is in simple present tense, there is no need to change the tense of the sentence. तो देखो हमने टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, यहाँ पे भी प्रेजेंट में था, यहाँ पे भी प्रेजेंट में ही है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट हमने हैव की जगह पे हैज कर दिया, क्योंकि ही के साथ हैव यूज नहीं होता है, ही के साथ हैज यूज होता है। समझ में आ रहा है ये रूल? बढ़े आगे। नेक्स्ट वन, the conjunction that is used after the reporting verb but not in the case of interrogative and imperative sentences। अभी ये रूल में देखो क्या लिखा है कि कंजंक्शन क्या है? डैट है। डैट एक कंजंक्शन है जो कि हम हर एक सेंटेंस में यूज कर रहे थे। अभी तक जो भी सेंटेंस देखे उसमें यूज किया, सेड, दैट, आस्क्ड दैट, है ना, ये हमने यूज किया है। सो डैट लेकिन कहाँ यूज करना चाहिए? यहाँ पे यूसेज ऑफ डैट बताया गया है कि डैट आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ यूज नहीं करना पड़ेगा? देयर इज एन एक्सेप्शन। जैसे इकोनॉमिक्स में कैसे एक्सेप्शंस पढ़ते हो ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये रूल में एक्सेप्शन है कि ये तो यूज करोगे डैट, लेकिन कहाँ यूज नहीं करना है? बट नॉट इन द केस ऑफ इंटरोगेटिव एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस। अगर डायरेक्ट जो एक्चुअल वर्ड्स जो है स्पीकर के, वो इंटरोगेटिव और इंपरेटिव में अगर लिखे हैं, तो उसके पहले डैट यूज नहीं करोगे। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कौन सा सेंटेंस? जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस मींस कौन से सेंटेंस? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस। तो ऐसे अगर आप दो सेंटेंसेस देखते हो कहीं पे, तो उसके पहले आपको डैट लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ सी हियर, पहला जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव भी नहीं है, इंपरेटिव भी नहीं है, ठीक है, इसलिए डैट यूज किया है। देखो सेंटेंस, ही सेड आई एम सिक, आई एम अनेबल टू कम नाउ। मैं आज बीमार हूँ और मैं आज नहीं आ सकता हूँ, ये सेंटेंस है। क्या ये इंटरोगेटिव है? नहीं है। क्या ये इंपरेटिव है? नहीं है। तो उसके पहले डैट लगेगा? यस लगेगा। He said that I will change into he and will change into was, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस से किसमें चेंज होता है? सिंपल पास्ट में होता है। तो am is changed into was. He said that he was sick and, दो सेंटेंसेस है तो कंबाइन करना पड़ेगा। He was sick and that he was unable to come then. दैट दो बार क्यों लगा? क्योंकि ये एक सेंटेंस था, ये दूसरा सेंटेंस था, दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना पड़ेगा एंड के मदद से, और दैट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो ही सेड दैट ही वाज सिक एंड दैट ही वाज अनेबल टू कम देन। नाउ इज चेंज्ड इनटू देन। अगर ये नाउ से देन में चेंज नहीं करते हो ना, तो हाफ मार्क रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर सेंटेंस। अभी जो एक्सेप्शन देखा था कि डैट कहाँ यूज नहीं करना चाहिए, इंट्रोगेटिव में और इंपरेटिव में, तो उसका एग्जांपल देखो। दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट आई हैव नोटेड डाउन। द स्ट्रेंजर आस्क्ड व्हाट इज योर नेम।
स्ट्रेंजर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। सो व्हाट इज योर नेम, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ बिकॉज यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। तो इसके पहले अभी डैट लगना चाहिए क्या, नहीं लगना चाहिए, इसलिए देखो आंसर में भी हमने डैट नहीं लिखा है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड, डायरेक्टली आप ये WH वर्ड यहाँ पे पुट अप करोगे, is will change into was लास्ट में। द स्ट्रेंजर आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज, स्ट्रेंजर मुझसे पूछ रहा था कि मेरा नाम क्या है ना। ऐसे बताओगे ना आप इंडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट वर्ड्स कोट होंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे बोलोगे कि उसने मुझे ऐसा बोला, मैंने उससे ऐसा कहा। ओके, सो लाइक दैट द स्ट्रेंजर आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज। आया समझ में इतना पार्ट। अभी नेक्स्ट है जो कि बहुत इजी है, द प्रोनाउन आई इज चेंज्ड इनटू ही और शी। अभी आई जो प्रोनाउन है वो चेंज होता है ही में या तो फिर शी में, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। रानी सेड आई एम बिजी, अभी रानी क्या है यहाँ पे, गर्ल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, शी आना चाहिए, और उसके पहले दैट तो यूज होगा क्योंकि ना तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, दैट्स व्हाई दैट को हम यूज करेंगे। रानी सेड दैट शी वाज बिजी, सिंपल। तो एक आपको डैट का यूसेज समझ में आना चाहिए कि कहाँ डैट लगेगा और कहाँ डैट नहीं लगेगा। सो यहाँ पे डैट लगेगा, रानी सेड दैट शी वाज बिजी। समझ में आ रहा है। Now the last rule of today's topic, general truths are always written in simple present tense in indirect speech। अभी ये जनरल ट्रुथ्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो जैसा होने ही वाला है। जैसे कि एग्जांपल देखो मैंने नोट डाउन किया है, माय टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अभी ये अर्थ जो है वो हमेशा रिवॉल्व करता ही है सन के आजू बाजू में, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, कुछ भी हो जाए, सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, ये होना ही है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं हमारे, ये नेचर से रिलेटेड यूनिवर्सल ट्रुथ्स है। सो ये जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ्स रहेंगे वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखने चाहिए। माय टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, My teacher said that the earth revolves around the sun. There will be no change क्योंकि ऊपर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, नीचे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। समझ में आ रहा है। सो इस तरीके से आज हमने, आज के हिसाब से काफी है इतने रूल्स, इतने पहले घर पे रीड करो और बाकी भी है इसमें रूल्स। वी विल